সম্প্রতি কলকাতা পৌর নিগমের অন্তর্গত 29 নম্বর ওয়ার্ডের নারকোলডাঙ্গা বস্তিতে ভয়াবহ আগুন লাগে। আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কমবেশি 32টিরও বেশি বাড়ি। এই ভয়াবহ আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যাওয়া বাড়িগুলির মানুষজন প্রায় নিঃস্ব হয়ে যান। তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে বহু রাজনৈতিক ব্যক্তি ও সমাজসেবী সংগঠন। 29 নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর বিট্টু সিংয়ের উদ্যোগে এদিন বস্তিবাসী মানুষজনদের বাসনপত্র প্রদান করা হয়। এছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন নারকেলডাঙ্গার ইমাম শারাফত সাহেব। বিপদের দিনে এই সাহায্য পেয়ে সভাপতি খুশি, অসহায় বস্তিবাসী। দেখুন, আমাদের আগুন লেগেছে প্রথম আমাদের বিধায়ক, আমাদের পার্টি, আমাদের পরেশদা শুধু এখানে বলে না, পরেশদার কাছে হচ্ছে পরেশদা যেখানে কোনো কিছু হোক পরেশদার সর্ব আগে নিজে আগে পৌঁছে যায়। সোশ্যাল সমাজসেবক যদি বলে ওনাকেই বলে। দেখুন, এত কিছু হওয়ার পরে উনি এসে পড়ছেন এবং সারা জায়গায় উনি সোশ্যাল ওয়ার্কার কাজ করে যায়। ওনার দেখেই কিন্তু আমরা শিখেছি, ওনার প্রতিফলন করেই আমরা চলি এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও বলেছে যে মানুষের পাশে দাঁড়াও কর্মী হিসাবে। সেই জন্য আমরা মানুষের কাছে এসে দাঁড়াচ্ছি, এটাই আমাদের সবথেকে বড় কাজ। তবে কি আপনাকে তবে বলে তৃণমূলের কর্মী হিসাবে, তবে কি? আমি তো তৃণমূলের সৈনিক, একজন কর্মী, আমি তো মানুষের পাশে থাকবো। আমাদের কাজই হচ্ছে এইটাই হচ্ছে বড় কাজ আমাদের। এতেই মানুষ চিনবে এবং আমাদের পার্টির আরও অনেক উন্নতি হবে। তাহলে আজকে বিদেশ থেকে সার্টিফিকেট আনে, বলুন তো, এত বছরে তো কোথাও হলো না ভারতবর্ষের মধ্যে। তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনেক কিছু করছে, আরও করবে, এটা আপনারা দেখবেন। আপনার পুরো নামটা? বিট্টু সিং। আপনার এলাকাটা? আমার এলাকাটা হচ্ছে 29 নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যেই আমি থাকি, অসুবিধা মল্লিক লজে থাকি, কিন্তু আমি 29 নম্বর ওয়ার্ডেই জন্মস্থান আমার। তা আজকে হয়ে গেছে বলে আমি দেখলাম এদের তো থালা বাসন নেই, তা খাবার দাবার কি দিচ্ছেন এখানে? দেওয়া হচ্ছে আপনার হাঁড়ি, একটা কড়াই, দুটো থালা, একটা গ্লাস, একটা বাটি। আর আজকে প্রোগ্রামটা আমার উদ্যোক্তা আমার করেছেন, আমাকে উনি বলেছেন, ইমাম সাহেবই বলেছেন যে চলো তুমি এক কাজ করো, ওনাদেরকে কিছু হেল্প করো। তাই বলছি নিশ্চয়ই। কতজনকে দেওয়া? আমরা 53টা বাড়ি পড়ে গেছে, 53 জনকেই দিচ্ছি। তা ইমামবাবু আজকে বলেছেন বলেই কিন্তু আমরা এগিয়ে এসেছি এবং আমাদের আসার দরকার। এবং আগামী দিনে যে দুর্গাপুজো হবে, আমি এই ইমাম সাহেবকে দিয়েই কিন্তু কাপড় দেবো এবার দুর্গাপুজোতে। কেন আমাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই, এইসব নেই, আমরা মানি না এইসব। এখন ওনারও অনুষ্ঠান হলে আমাকে অবশ্য করি, উনি আমন্ত্রণ করেন, আমিও উপস্থিত হই। পার্টি যেখানে আমরা যা করি, কিন্তু মানুষ হিসাবে আমরা কিন্তু সর্বস্তরে এগিয়ে থাকি। आगे जो मेरा मीडिया वाले लोग हैं, सबसे पहले तो मैं उन सबका एक शुक्रिया अदा करता हूँ, बिट्टू सिंह की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। दूसरी बात यह है कि नारकेलडंगा बड़ी मस्जिद का मैं इमाम हूँ और बिट्टू सिंह के साथ इन कामों में जो काम के सोशल वर्किंग से मुताल्लिक़ है, कभी कभी ये हमें उसमें अगर बुलाते हैं, अलग से हम करते हैं, अलग से ये करते हैं, कभी कभी दोनों ज्वाइन हो करके और एक काम करते हैं। अब ये जो बिट्टू सिंह कर रहे हैं, जैसे कि आज यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट की वजह से जो ये एक आबादी पूरी जल गई, बर्बाद हो गई, इनके लिए राशन का, खाने के, रहने का जो इंतज़ाम, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। समाज सिर्फ बिल्डिंग में रहने वालों का नाम नहीं है, समाज का हिस्सा सिर्फ वो लोग नहीं होते जो बिल्डिंग में रहते हैं। समाज का असल हिस्सा, जिससे समाज का एक रूप सामने आता है, ये लोग हैं। इससे समझ में आता है कि हमारा फलां समाज किस अवस्था में और उसका स्टेटस क्या। हमें जैसे कि मालूम हुआ कि ये लोग जितने भी शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से, लेकिन ये लोग बिजली बिल भर रहे थे। इससे ये पता चला कि कोई ऐसा नहीं कि खाल किनारे है तो समाज के बिल्डिंग में रहने वालों की तरह नहीं, बल्कि ये ऐसा ही मुफ्त में रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे वो बिजली बिल भर रहे हैं वैसे ये भी भर रहे हैं, तो समाज का हिस्सा ही यही है। अब समाज के इस तरह के ऐसे हिस्सों में अगर कुछ आफत आए, कुछ अगर विपत आए, परेशानी आए,
उसमें सबसे बड़ी इंसानियत यह है, सबसे बड़ा मानवता यह है, एक आदमी की आदमियत यह है तो वहाँ फ़ौरन सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। तो हमने बिट्टू सिंह को देखा कि कोई भी अगर इस तरह की आफत आती है तो ये वहाँ पर एकदम खड़े हो जाते हैं। और इसी वजह से मैं इनको हमेशा इनके कंधे पर, सर पर हाथ रखता हूँ। तो मैं एक बड़ी मस्जिद का इमाम हूँ, अलग से जो मैं करता हूँ, लेकिन आप जो करते हो तो मैं तुम्हें इस सिलसिले में हमेशा आशीर्वाद देता हूँ। हम ये कहना चाहेंगे कि जो आज बिट्टू सिंह ने ये सब किया, एक बहुत बड़ा काम है। धर्म अलग है, लेकिन इंसानियत ये हर धर्म के अंदर, एक इंसान का सेवा हर धर्म के अंदर, बल्कि हर धर्म के अंदर इंसान का सेवा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। आज के इस वक्त में आप लोगों के ताउन, सहयोगिता या हेल्प से जो ये काम हो रहा है, इस काम के लिए हम ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ा इंसानियत का काम कर रहे हैं और आप लोग इसमें ताउन दे रहे हैं। मैं इसीलिए इसमें अपना भी एक हिस्सा लगाने आया हूँ। बस मेरे आने की यही हैसियत है। अब चाहे इमाम होने के नाते मेरे हाथों डिस्ट्रीब्यूट कराएं, लेकिन जैसे ये इस काम में है, आप इस काम में हैं, बराबर उसी लाइन में हम भी खड़े हैं। अलग से आप लोगों का जो हमारा रिस्पेक्ट देना होता है, मैं इसके लिए अलग से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं बिट्टू सिंह के इन कामों को बहुत सराहता हूँ। बंगाल में स्थिति जैसी कुछ भी हो, लेकिन जो माटी मानुष की जो हुकूमत कहलाती है, टीएमसी की, ममता जी की हुकूमत है, इसमें जो कुछ भी लोगों की तरफ से, अभी जैसा कि UNO में वहाँ से सर्टिफिकेट मिला है कन्याश्री वगैरह के सिलसिले में, यहाँ के टीएमसी गवर्नमेंट को वहाँ से आशीर्वाद मिला, सर्टिफिकेट मिला। हिंदुस्तान की, भारत की तमाम 29 स्टेट में ये एक बहुत ही अजीब स्टेट है कि जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा UNO मिशन वो उसकी तारीफ में लग रहा है कि तुमने यहाँ पर लोगों को बहुत ही चुना। हम ये समझते हैं कि बिट्टू सिंह वही काम कर रहे हैं, चाहे अपने छोटे पैमाने पर से ही, जो बहुत बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठने वाले कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबके सामने ये हकीकत बोलता हूँ कि राजनीति से अलग ऊपर उठ करके इस तरह का काम करना इस वक्त का सबसे बड़ा दायित्व है और सबसे बड़ा एक ऐसा काम है जिस काम को हम लोगों को करना चाहिए। कोई अगर कर रहा है तो उसे देख करके हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। मानुषेरा, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बांग्ला।